Hello everyone, welcome to my YouTube channel Python Brains. So in the previous session, students, we learned about the modules, how we can import the modules. In today's session, we learn about the random module in detail. We learn all the functions of random modules in today's session. Before starting this session, students, if you are new to my channel, please subscribe this channel for upcoming videos. What is random module or how we can use the random module, students? Random. As the name is there, so we use this for generate the random numbers in Python. This module can be used to perform random actions such as generating random numbers, printing random value for any sequence like list, string, etc. Okay. And this is a built-in module in Python or built-in function, you can say that. Okay. Because in class 11th and 12th CBSE syllabus students, we learn some built-in modules and we create our own modules also, right? So ये टॉपिक आपको क्लास 11th में और क्लास 12th दोनों में ही आप इसको पढ़ेंगे और आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट रहेगा. What all are the examples of random module, students? Like shuffling of cards, captcha on any registration form, you can say that. Computer games like throwing a dice, flip the coin. All these are the examples of a random module, student. So now next, what we have, students, how to import random module. So very simple thing, students. First we use the import keyword and then we write random. So import random. This is the way how we can import our random module in our file. Now the first function is random. Random is module also and random is function of that module also. Okay? Like एक मॉड्यूल में हमारे बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ऐसे ही रैंडम मॉड्यूल में एक फंक्शन है हमारा रैंडम. ओके. अब इस फंक्शन का क्या काम है एंड हाउ इट वर्क्स, राइट? सो generate random floating numbers between 0 and 1, including 0 but excluding 1, and no argument needed in this. Very simple, student. Okay. This function generate what? This function generate floating numbers between 0 and 1. हम उसमें कोई रेंज नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं फिक्स है. दैट इज इन द सिंटेक्स हियर कि 0 और 1 के बीच में वो फ्लोटिंग नंबर्स को जनरेट करता है. 0 इंक्लूड रहेगा बट 1 इंक्लूड नहीं रहेगा, स्टूडेंट. So students, let's check this program on ideally also. The very simple way we can check this out. So first of all, I import my module, import random. Okay. Import random. And now here I am using the random function. तो कोई भी मॉड्यूल का अगर हमें फंक्शन यूज करना होता है, स्टूडेंट, तो फर्स्ट हम क्या लिखते हैं? मॉड्यूल का नाम एंड देन फंक्शन का नाम एंड देन सिंपल दिस वन. ओके. अब आप इसको जितनी बार भी स्टूडेंट्स रन करेंगे, आपको एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मिलेगा. ओके. बिटवीन 0 एंड 1. 1 इज नॉट देयर बट 0 आ सकता है. ओके. अब अगर सपोज दैट कोई स्टूडेंट कहता है कि मैम अगर मैं यहाँ पे कोई रेंज दे देता हूँ, सपोज दैट, ओके, मैंने यहाँ पर कोई भी रेंज फिक्स कर दी, देयर इट शोज एन एरर बिकॉज दैट टेक्स नो आर्ग्यूमेंट. ओके. ये अकॉर्डिंग टू द सिंटेक्स, अकॉर्डिंग टू द रूल वी हैव दैट रैंडम फंक्शन कभी भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है, स्टूडेंट्स. सो दैट टेक्स नो आर्ग्यूमेंट. ओके. नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग, स्टूडेंट, रैंड रेंज फंक्शन. अब रैंड रेंज फंक्शन क्या काम करता है, स्टूडेंट? किस तरीके से इसकी वर्किंग है, इस पे बात करते हैं. दिस विल ऑल्सो जनरेट अ रैंडम वैल्यू, बट रैंडम फंक्शन आपकी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू देता था, ये आपकी इंटीजर वैल्यू देगा विद इन अ रेंज. ओके. विद इन अ रेंज, जो भी रेंज आप यहाँ पर इसको दे रहे हैं, स्टार्ट और स्टॉप, वो उसी रेंज के बीच में आपको एक रैंडम वैल्यू देगा जिसमें आपका स्टार्ट वैल्यू इंक्लूड होगा but stop value is excluding from that. Okay. Having difference as a step value. Okay.
So this is the basic point of rand range function, students. And suppose that मेरे पास एक एग्जांपल है, return a number between 3 and 9. ठीक है, मुझे 3 और 9 के बीच में एक नंबर चाहिए, तो मैंने लिखा import random, फिर print random dot range 3 and 9. तो दिस क्या करेगा, इस स्टेटमेंट का आउटपुट क्या होगा, रिटर्न नंबर बिटवीन 3 to 8, एनी नंबर बट इंटीजर वैल्यू इन दिस. Okay, students, integer value only. Now again, let's check this on IDLE, students. Random dot rand range. Okay, तो आपने यहाँ पे दिया 3,8. Simply. Answer is 5. Okay, student. Simply I execute this random dot rand range. अभी हम इसको फिर से चेक करते हैं, स्टूडेंट्स. अब यहाँ पर मैं कुछ इसको स्टेप वैल्यू भी दे देती हूँ. ओके, सो नाउ अब आप देखते हैं क्या आंसर्स आएंगे. अगेन वी हैव अ 5. इसने क्या वैल्यू ली, इसने 3 लिया, देन 5, देन 7. उन तीनों में से उसने एक वैल्यू दे दी, राइट. एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, स्टूडेंट्स. 3,10 करते हैं, एंड देन वी हैव अ स्टेप वैल्यू 2. ठीक है, देन वी हैव अ 3 इन दैट केस. मैंने आपको क्या बताया था, स्टार्टिंग वैल्यू इंक्लूड होगी बट एंडिंग वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, राइट. अब अगर सपोज दैट मैं इस रेंज को अपोजिट कर देती हूँ, राइट, लाइक दिस, आई जस्ट वांट दिस वन. ओके, देन इट शोज एन एरर, स्टूडेंट. ओके, बिकॉज ये रिवर्स ऑर्डर पे काम नहीं करेगा. ओके, so this is the way how the rand range function works with the random module. Now next we are having, students, rand int. Now what is the working of this function? This method also return an integer number selected element from the specified range. But rand range और इसमें फर्क क्या है, students? वो भी आपको integer value देता है, rand int भी आपको integer value दे रहा है, but in this include both the ranges, right? Upper and lower. Rand range में आपकी upper limit include नहीं होती है, but in rand int including both the limits upper and lower. Okay, अब suppose that अगर मैंने लिखा random dot rand int 4,9, so this function will generate random integer value between 4 and 9, both the values included. Okay, अभी जो हमने last example में भी डिस्कस किया था, स्टूडेंट्स, like lower limit always will be smaller or equal to upper limit. Okay, lower limit आपकी बड़ी नहीं हो सकती. Okay, students, is it clear? Any doubt in this? Then you can write it in the comment section. अब एक बार इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, स्टूडेंट्स. हम तो मैंने लिखा random dot rand int 4,12. Simple. So 8 is there. Okay, simple, 8 is there normally. अब अगर मैं इसी को दोबारा से एग्जीक्यूट करती हूँ, स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 4,4. Is it okay? Working. Okay. Again I executed this, student. Okay. यहाँ पर मैं कुछ स्टेप वैल्यू अगर दे दूं, then what happened? Okay. This will not work. Rand range आपकी स्टेप वैल्यू एक्सेप्ट करता है, बट rand int आपकी स्टेप वैल्यू को एग्जीक्यूट नहीं करता है. Okay. Clear? Here is any doubt? Again we try this, students. Okay, अभी हम क्या ट्राई करते हैं, हम अपनी जो लोअर लिमिट है उसको बिगर करते हैं एज कंपेयर टू द स्मॉल अपर वन. तो इन दैट केस ऑल्सो इट शोज एन एरर. इस केस में भी आपको एरर शो करेगा. ओके, so this is the simple thing, students, that we discussed regarding rand range function or rand int function. Okay, clear? So rand range और rand int दोनों में मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया है, स्टूडेंट, that how it works. Okay, now move to the next part, students, that is very
interesting again. Uniform function. Okay. Now, how uniform function work? Uniform function returns float numbers between two given numbers. Okay. That function returns float numbers between टू गिवन नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में कोई भी हमें फ्लोट नंबर मिलेगा. ओके. एंड आपका जो इंक्लूड होगा, लोअर लिमिट तो इंक्लूड होगी, बट जो आपकी अपर लिमिट होगी वो डिपेंड करेगा राउंड में. अगर वो राउंड ऑफ करते करते अपर लिमिट तक आ जाता है तो वो इंक्लूड हो सकती है, बट डायरेक्टली वो इंक्लूड नहीं होगी. ओके. अगेन आई रिपीट दिस पॉइंट कि उसने आपको फ्लोट नंबर दिया, बट फ्लोट नंबर वो दे रहा है आपको, लेकिन राउंड ऑफ करते करते वो आपका अपर लिमिट तक पहुंच गया, दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम. ओके. लेकिन डायरेक्टली अपर लिमिट आपकी इंक्लूड इसमें नहीं होगी. राइट. रैंडम डॉट यूनिफॉर्म 2,6. तो सिंपली वो एग्जीक्यूट हो गया, उसने एक फ्लोट नंबर आपको दे दिया. राइट. अब मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके की लिमिट दी, तो दैट इज, अब यहाँ पे क्या हुआ, वो इतनी बड़ी वैल्यू जो होगी वो उसके आउट ऑफ रेंज चली गई. वो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, लाइक इसमें उसने किया. राइट. दिस वैल्यू इज आउट ऑफ रेंज, तो उसने उसको क्या एज्यूम किया, उसने उसको 1 और 1 एज्यूम किया. राइट. बट दिस वैल्यू इज इन द रेंज, तो इसके अकॉर्डिंगली उसने आपको रिटर्न उसने आपको की फ्लोट नंबर्स. ओके स्टूडेंट्स. ठीक है. एक बार इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं. मैंने यहाँ पर दिया स्टूडेंट्स आपको रैंडम डॉट यूनिफॉर्म. ठीक है. 2,6 सिंपल. तो उसने एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आपको रिटर्न कर दिया सिंपल. ओके. देन आई राइट रैंडम डॉट यूनिफॉर्म. ओके. 1,1 सेम नंबर्स मैंने दिए. So the answer is again 1.0 because according to the rule, float number I needed. Okay. So again I write random dot uniform. Okay. In that also students, what we write, I simply write in this 1 comma 1 point. I give some big number here. Okay. So it ignores this because it is out of range, student. Okay. Now again I write random dot uniform in this. Okay. And then simply I write 1 comma 1.10001, any number here with the small range, so that accepted in that. Okay students. So this is the working of a uniform function, student. Okay. Okay. Now move to the next part, student. In this, we have a choice function. Now, what is the working of a choice function, students? This function is used for random selection from any sequence. Okay. यहाँ पर आप कोई सीक्वेंस पास करेंगे, लाइक आपने कोई लिस्ट दी, या आपने कोई स्ट्रिंग पास की, आपने कोई टपल लिया. राइट. सो वहां से कोई भी एक वैल्यू को लेगा, रैंडम वैल्यू, एंड देन प्रिंट. ओके. रिटर्न एनी रैंडम वैल्यू फ्रॉम द गिवन सीक्वेंस. जैसे सपोज दैट आपके पास एक लिस्ट है. ओके. आपने लिखा रैंडम डॉट चॉइस एल. सो इस लिस्ट में से कोई भी एक रैंडम वैल्यू उसने प्रिंट की. Now, next we have an example of string. So here I am having one string. So from that also one character is there. You can check one tuple also. Okay. आपने tuple लिया, उस tuple से एक value उसने print कर दी. Okay. So this is the way how the choice function work. जहाँ पर आपको एक sequence पास कर रहे हैं और उस sequence में से वो कोई भी एक random value को generate कर रहा है. Right. आपने एक लिस्ट दी, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स. यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रिंग्स थी, बट दैट इज अ लिस्ट. तो इन दैट केस ऑल्सो दिस प्रिंट द रैंडम वैल्यू. आप इस फंक्शन की वैल्यू को, जो भी ये रिटर्न कर रहा है, उसको एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं और उसको भी आप सिंपली प्रिंट कर सकते हैं. लेट्स चेक द एग्जांपल हियर स्टूडेंट्स. तो सिंपली पहले मैं एक यहाँ पर लिस्ट ले लेती हूँ. L is equal to 1 2 3 4 5 6. कोई भी एक लिस्ट ली, and then I write random dot choice L.
ओके सिंपली। सो वन रैंडम नंबर इज देयर। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है कि हमेशा आंसर सेम रहेगा, आप इसको दोबारा रन करिए तो डिफरेंट आंसर भी हमारा आ सकता है, सेम भी आ सकता है, डिफरेंट भी आ सकता है, राइट। अब आप एक कोई स्ट्रिंग ले लीजिए स्टूडेंट्स, लाइक आई राइट पाइथन हियर, so simply I write this again. My string name is S. So N is there. Okay, clear? So simply, what is the main rule? That we pass any sequence in this. और डायरेक्ट भी पास कर सकते हैं आप इसके अंदर, राइट। ऐसा नहीं है कि आपको उसको पहले डिक्लेयर करना है देन यू पास द फॉर्म ऑफ वेरिएबल, ऐसा कुछ नहीं, आप डायरेक्टली भी उसको पास कर सकते हैं, राइट। आप उसको एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे मैंने लिया a is equal to this, L is my list simply, and then I write here print A. So my answer is 1. So this is the way how the choice function works, students. Okay. Now move to the next function, student, that is a shuffle function. So this function shuffle the elements of the list. Shuffling means order change over. Okay. And this function shuffle list in list means in place. उस प्लेस पे उसको चेंज कर रहा है और रिटर्न कर रहा है आपको नन। ओके, सो एक बार इसको आइडियली पे भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सिंपली हमने एक लिस्ट पास की, रैंडम डॉट शफल लिस्ट पास की, उसके बाद आपने उस लिस्ट को प्रिंट किया तो उसके एलिमेंट शफल हो गए, उनके ऑर्डर चेंज हो गया। और अगर आप देखते हैं कि इस फंक्शन ने क्या रिटर्न किया, आपने उसकी वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर किया, तो दैट प्रिंट नन। Okay, so let's check this on ideally, students. Okay, for better understanding. Like I am having one list L. This is the list. So I write here. पहले हम इसकी ID चेक करते हैं, ठीक है। एड्रेस चेक करते हैं, ये एड्रेस है मेरी लिस्ट का। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ आई राइट रैंडम डॉट शफल L. L को मैंने शफल किया सिंपली, ठीक है, शफल हो गया। नाउ अगेन आई प्रिंट L, तो एलिमेंट शफल हो गए। अब अगर आप आईडी ऑफ एल चेक करेंगे स्टूडेंट्स, सो नाउ यू कैन सी इट इज द सेम, ठीक है। सो इन प्लेस, वो उसी प्लेस पर उसको चेंज कर रहा है, वो नया लिस्ट नहीं क्रिएट कर रहा है, राइट स्टूडेंट। नाउ वी चेक वन मोर थिंग स्टूडेंट, दैट दिस फंक्शन रिटर्न समथिंग और नॉट। ओके, simply I write it, and now I write print D. So according to our concept, this function return none here. Okay, so the working of a shuffle function, students. Okay, so I hope these concepts are clear to you, students. Today we learn about the random module and all functions of random module in this video. Okay, hope you like this video, students. Please share with your friends, and we feel very happy to help you in your queries. If you have any doubt, then please write it in the comment section, or you can mail us also on our particular mail ID. Or if you need any other help related to the Python or any computer science topic, then you can write a mail to us. We will be very happy to help you in your Python journey.